Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture, we are going to study various properties of matter. First of all, we must know what is deformation. Any change produced in length, shape or volume of an object when it is subjected to some external force is called deformation. I repeat, what is deformation? Deformation is any change in length, shape or volume of an object when it is subjected to some external force. जब भी किसी हम सॉलिड के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस सॉलिड की लेंथ में, शेप में या वॉल्यूम में किसी एक में लेंथ में सिर्फ चेंज आ सकती है, सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आ सकती है, सिर्फ शेप में चेंज आ सकती है, लेंथ और वॉल्यूम दोनों में चेंज आ सकती है, लेंथ और शेप में चेंज आ सकती है। मतलब उस बॉडी की लेंथ, शेप या वॉल्यूम में अगर चेंज आए फोर्स लगाने पे तो हम कहते हैं उस बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो गई है, वो बॉडी डिफॉर्म हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी होल्ड अ सॉफ्ट रबर बॉल, रबर की बॉल अगर हम लें और उसको अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं, उसको ऐसे पिचका दें, तो हम देखते हैं कि उसकी जो शेप होती है या वॉल्यूम जो होता है उसका चेंज हो जाता है। और अगर हम वो फोर्स, हम उसको रबर की बॉल के ऊपर से फोर्स ख़त्म करें तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वो बॉल आ जाती है। इसी तरह रबर आपने देखी होगी, रबर या इलास्टिक, अगर आप उसको दोनों एंड से पकड़ के फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है, और अगर आप वो फोर्स रिमूव कर दें, ख़त्म कर दें, तो वो जो रबर या जो इलास्टिक होगी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर वापस आ जाती है। डिफॉर्मेशन दो तरह की होती है, याद रखिएगा। इफ द डिफॉर्मेशन इज टेम्परेरी and after the removal of force body comes back to its original position, body restores its original position, then this is called elastic deformation. Elastic deformation टेम्परेरी होती है, आर्जी होती है, जबकि दूसरी होती है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये याद रखिएगा। इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज टेम्परेरी while plastic deformation is permanent. If the body does not come back to its original position, then we say it is plastic deformation. इलास्टिक डिफॉर्मेशन में वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा, लेकिन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में वो अपनी असली हालत में, ओरिजिनल पोजीशन पे वो वापस नहीं आएगा। ठीक, ये है डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। आई रिपीट, इफ द डिफॉर्मेशन is temporary and body restores its original position, body comes back to its original position, then we say this is elastic deformation. If the deformation is permanent and body does not come back to its original position, we say it is प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन और
प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में ये डिफरेंस है। अच्छा, अब एक होती इलास्टिसिटी, एक होती प्लास्टिसिटी। ये भी आपको पता होना चाहिए इनमें डिफरेंस क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल, the property of a body due to which it regains its original position, due to which it regains its original position is called elasticity, is called elasticity. The property of a material due to which it regains its original position is called elasticity when deforming force is removed। जब हमने जो फोर्स है उसके ऊपर से वो हमने रिमूव कर दी, खत्म कर दी है, और दूसरा इलास्टिक है तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर वापस आ जाएगी। अच्छा, if the body does not come back to its original position, we say it is plastic deformation, and the material body which do not recover their original positions after the deforming forces are removed are called plastic bodies, and this property of the material is called plasticity. Plasticity is that property of the material due to which it does not restores its original position, does not regains its original position. The property of a material due to which it does not regain its original position is called plasticity. ठीक है। अच्छा, all real rigid bodies are to some extent elastic. कुछ हद तक वो elastic होते हैं, which means that we can change their dimensions mean length, shape or volume etc. slightly by pulling, pushing, twisting और compressing them। जो रियल रिजिड बॉडीज होते हैं उनको हम कुछ हद तक डिफॉर्म कर सकते हैं, कुछ हद तक उनकी जो शेप होती है वो या लेंथ या वॉल्यूम बदल सकता है। कैसे? उनको पुल करके, बाय पुलिंग, पुशिंग, ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो उनके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे तो रिजिड बॉडी जो है वो कुछ एक्सटेंट तक, कुछ हद तक उनमें डिफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो इलास्टिक होगी। व्हाट इज स्ट्रेस? फिजिक्स में हम अक्सर स्ट्रेस सुनते हैं और प्रेशर सुनते हैं, तो सुन लें स्ट्रेस में और प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है। पहले देखें स्ट्रेस क्या है। जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई और बॉडी की लेंथ, शेप या वॉल्यूम में चेंज आई तो हमने कहा ये डिफॉर्मेशन है। अब वही डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ दैट बॉडी, जिस बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाई थी उस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। डिफॉर्म का मतलब उसकी शक्ल को बिगाड़ने वाली फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, या द force per unit area to produce any change in length, shape or volume of the body is called stress. So when deforming forces are applied on a body, forces of reaction comes into picture internally तौर पे। internally उनके अंदर ऐसे forces आ जाती हैं जो इसको resist करती हैं, जिनको cohesive forces कहते हैं in the body due to relative displacement of its molecules which tends to restore the body to its original conditions। उस बॉडी के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्सेस होती हैं, उसके अंदर जो फोर्सेस इंटरनली तौर पे जो फोर्सेस होती हैं, जो हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, वो उस बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करवाने की कोशिश करती हैं। हम डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जिससे उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसके अंदर जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं वो जिसको हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं, they try to restore its original position। The restoring or recovering force
per unit area set up in a body is called stress. उसे हम कहते हैं, ये है स्ट्रेस। ठीक, स्ट्रेस क्या है? रिस्टोरिंग और रिकवरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये इंटरनली तौर पे होगी। और इट इज मेजर्ड बाय अ डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी being equal in magnitude but opposite in direction to the deforming force. अच्छा, अब सुने स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रेस में और प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है और प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया होते हैं, दोनों का फार्मूला सेम है। ठीक है, स्ट्रेस इज force. Stress is force generated internally. हमने कहा restoring force या recovering force होती है, तो stress is a force generated internally when an external force acting on a body. I repeat, stress is a force generated internally when an external force acting on a body. Stress has structural property. Stress has structural property. Structural, structural, स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है। ठीक है, बनावट, साख्त से, लेंथ, शेप, वॉल्यूम से। ठीक, स्ट्रेस हैज स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी। It is developed, स्ट्रेस की बात कर रहा हूं, स्ट्रेस इज developed within a body to resist external force. स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, F/A। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है और इसका डायमेंशनल यूनिट ml इनवर्स T इनवर्स स्क्वायर होता है। जबकि pressure is the external force acting on a body per unit area. Pressure is the external force acting on a body per unit area. Pressure belongs to thermodynamic properties. थर्मोडायनामिक, ये टेम्परेचर, वॉल्यूम एटसेट्रा उनसे रिलेटेड होता है, इसलिए हम कहते हैं ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती है। प्रेशर का फार्मूला भी F/A ही होता है। Difference between stress and pressure is pressure can be exerted on liquid gases. Pressure हम लगाते हैं आमतौर पे liquid and gases पे। Pressure can be exerted on liquids and gases, whereas stress is exerted only on solids. Stress सिर्फ सॉलिड्स पे लगाई जाती है, फ्लूइड्स पे, लिक्विड और गैसेस के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है। ये मेन डिफरेंस है। मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड प्रेशर इज प्रेशर कैन बी एक्सर्टेड ऑन लिक्विड एंड गैसेस, whereas stress is exerted only on solids. ये अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। If the applied force, अब हम जो बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, is inclined to surface, मीन वो उस बॉडी के सरफेस के ऊपर इंक्लाइंड है, कुछ एंगल बना रही है। ये सपोज कोई बॉडी है और इसके ऊपर जो है वो फोर्स ऐसे किसी एंगल के ऊपर एक्ट कर रही है, ये फोर्स किसी एंगल के ऊपर एक्ट कर रही है, तब इसका वो कंपोनेंट, ये फोर्स लग रही है, ये बॉडी है और फोर्स ने कोई एंगल बनाया हुआ है। ये सपोज मैं कहता हूँ ये कोई एंगल बनाया है फोर्स ने, ये कहा जा रहा है इफ द अप्लाइड फोर्स इज इंक्लाइंड टू द सरफेस, सरफेस के साथ इंक्लाइंड है, किसी एंगल पे है, इट्स कंपोनेंट, फिर हम फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, इट्स कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस पर यूनिट एरिया। अब इस फोर्स का वो कंपोनेंट जो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया
is called normal stress, and the component along the surface. अब इस फोर्स का जो कंपोनेंट एक अगर परपेंडिकुलर तो एक ऐसे कंपोनेंट भी होगा, इधर यूं पैरेलल कंपोनेंट होगा उसी सरफेस के ऊपर, जो हमने बॉडी लिया था उसके ऊपर परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी होगा, ये पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल ऐसे भी होगा और ऐसे अपवर्ड कंपोनेंट भी होगा। ये जो अपवर्ड है ना, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस, जबकि जो है वो component along the surface per unit area, component along the surface per unit area is called tangential stress, is called tangential stress. Stress has the dimensions and units of pressure, ठीक है, प्रेशर, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, इसकी प्रेशर और स्ट्रेस के यूनिट जो होते हैं वो सेम होते हैं। अच्छा, याद रखिएगा, स्ट्रेस तीन तरह की होती है, स्ट्रेस तीन तरह की होती है, shear स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। स्ट्रेस तीन तरह की होती है। टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक, फोर्स पर यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। होगी ये फोर्स पर यूनिट एरिया ही, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्योंकि वॉल्यूम में चेंज आई है। फोर्स पर यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन शेप इज कॉल्ड shear स्ट्रेस, ठीक। टेंसाइल स्ट्रेस लेंथ में चेंज प्रोड्यूस करती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वॉल्यूम में चेंज प्रोड्यूस करती है, और shear जो होती है वो शेप में चेंज प्रोड्यूस करती है। जब चेंज आती है स्ट्रेस लगाने पे, तो उस चेंज की मेजरमेंट को हम कहते हैं स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज द चेंज, स्ट्रेन इज द चेंज produced by stress per unit dimension of the body is called strain, and it is measured by the change per unit length. Change in length to original length is called linear strain. Again strain भी तीन तरह की होती है, टेंसाइल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन एक ही बात है। टेंसाइल या लीनियर, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, change in length delta L to original length is called tensile strain. इसी तरह the ratio of change in volume to original volume is called volumetric strain, जबकि the ratio of change in shape, the ratio of change in shape to original shape is called shear strain, is called shear strain, और सिंपली इसको shear भी कहते हैं, ठीक है। जिस तरह स्ट्रेस तीन तरह की थी, स्ट्रेन भी तीन तरह की है, ठीक है। ये वाली टेंसाइल स्ट्रेन, ये वाली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ये वाली डेल्टा ए बाई ए, ये shear स्ट्रेन। अब क्योंकि जो स्ट्रेन है ये सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो होती है, इसलिए स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और यूनिट लेस क्वांटिटी है। एक डायमेंशन लेस है और यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट वी हैव हुक्स लॉ। किसी भी मटेरियल के लिए हम देखते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये हुक्स लॉ को ओबे कर रही हैं, ये मटेरियल हुक्स लॉ को ओबे करता है। इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट स्टेट्स दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद एन इलास्टिक लिमिट।
within elastic limit, stress and strain are directly proportional to each other. This is what we call Hooke's law. तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो आएगा स्ट्रेट लाइन. ये अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पे हमारा ये स्ट्रेन और एक्स एक्स वाई एक्स पे लेते हैं हम स्ट्रेस, देन ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन. और जब स्ट्रेट लाइन होगा हम कहेंगे ये यहाँ पे हुक्स लॉ जो है वो ओबे हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन होगा. यहाँ पे जाके थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करता है, ठीक, फिर ऐसे इस तरह होता है. तो जहाँ तक ये लाइन स्ट्रेट रहती है हम कहते हैं ये हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है. ठीक, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, इसको स्ट्रेस कहते हैं हुक्स लॉ ओबे हो रहा है. उसके बाद थोड़ी सी डिफॉर्मेशन आती है और इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, तो इसके अंदर तक. उसके बाद जैसे हम इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते हैं बॉडी के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है, इसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं. और उसके बाद जैसे हम मज़ीद स्ट्रेस लगाएंगे तो उस वक्त बॉडी के अंदर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होती है, उसके बाद बॉडी जो है वो फ्रैक्चर कर जाता है. नो वी वर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस हुक्स लॉ. तो हुक्स लॉ जो है वो क्या है कि जब स्ट्रेन या स्ट्रेस ज़्यादा नहीं है, मतलब कि स्मॉल हैं, देन दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं. इस कॉल्ड हुक्स लॉ. और किसी भी सॉलिड के लिए याद रखिएगा स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशो कांस्टेंट रहती है, स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशो कांस्टेंट रहती है, और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी. इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी यूनिट्स या डायमेंशन सेम होती हैं जो स्ट्रेस की होती हैं या प्रेशर की होती हैं. स्ट्रेस, प्रेशर और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑल हैव सेम SI यूनिट्स. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 तरह के होते हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड shear modulus. If the stress is increased beyond the yield strength or elastic limit, elastic limit से अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लगाएं, मटीरियल या specimen becomes permanently deformed and does not recover its original dimensions, and when stress is removed we know this behavior is called plasticity. Beyond yielding comes rupture. अब उसके बाद क्या आ जाएगा, रप्चर आ जाएगा, उसके अंदर दरार आ जाएगी बॉडी मटेरियल के अंदर, which occurs at stress called the ultimate tensile strength. And once we cross ultimate tensile strength, body fractures. फिर बॉडी उसके बाद टूट जाएगा. Those materials which undergo plastic deformation and then they break are called ductile materials. Are called ductile materials. Examples हैं lead, copper, etc. ठीक है, lead, copper, etc. इसी तरह वो मटेरियल जो इलास्टिक लिमिट के बाद टूट जाते हैं, मीन जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं आती है, द मटेरियल्स विच ब्रेक जस्ट आफ्टर इलास्टिक लिमिट इज क्रॉस्ड आर कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल्स या ब्रिटल सब्सटेंसेस. एग्जांपल है ग्लास, हाई कार्बन स्टील, एटसेट्रा. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी. As I told you, there are 3 types of elasticity. Let's discuss
देन वन बाय वन। तो पहले है यंग्स मॉडुलस, ठीक। तो ये यंग मॉडुलस जो होता है ये टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की रेशियो होती है। हमने स्ट्रेस की 3 टाइप बताई थी और स्ट्रेन की भी 3 टाइप थी। तो अगर स्ट्रेस जो है वो टेंसाइल हो और स्ट्रेन भी टेंसाइल हो तो उनकी रेशियो को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक। ये स्ट्रेस होती है टेंसाइल स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया और टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। जब इनकी आप रेशियो ले लोगे दिस बिकम यंग्स मॉडुलस टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन। तो उसका फार्मूला आ जाएगा y इज इक्वल टू एफ इंटू एल ओवर ए इंटू डेल्टा एल। और इसके ऐसा यूनिट जो होंगे यंग मॉडुलस के वो प्रेशर के या स्ट्रेस के ही होंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। और डायमेंशनल यूनिट जो होंगे वो एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर होगा। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस को हम वॉल्यूम इलास्टिसिटी भी कहते हैं। तो ये क्या होगा, ये रेशियो होगी नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया। और इनकी रेशियो को हम कहते हैं बल्क मॉडुलस और उसको के से डिनोट करते हैं, यंग मॉडुलस को वाई से और बल्क मॉडुलस को के से। नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन ऐसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एफ ओवर ए ओवर डेल्टा वी ओवर वी या एफ ओवर ए को हम पी भी कह सकते हैं, प्रेशर ओवर डेल्टा वी बाई वी, ठीक। ये वी ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा पी वी ओवर डेल्टा वी, ये भी कह सकते हैं। या आप इस ए को नीचे ले आए, वी को ऊपर ले जाएं, एफ वी ओवर ए डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, ये बल्क मॉडुलस। सो के इज इक्वल टू एफ वी ओवर ए डेल्टा वी, हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा बल्क मॉडुलस, या पी वी ओवर डेल्टा वी आ जाएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, याद रखिएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 बाई बल्क मॉडुलस, 1 बाई के। उसकी आप अगर वैल्यू पुट करेंगे तो एक कंप्रेसिबिलिटी होगी, ये होती है डेल्टा वी ओवर पी वी, डेल्टा वी फार्मूला ओवर पी वी, या ये होगा ए डेल्टा वी ओवर एफ वी में, इसको उल्टा दें ए डेल्टा वी ओवर एफ वी, ये बन जाएगा कंप्रेसिबिलिटी। तो जो यूनिट्स होंगे इसके फिर ये उल्ट हो जाएंगे बल्क मॉडुलस के, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका बनेगा और डायमेंशन भी उल्ट हो जाएंगे। Since fluids can permanently withstand only hydrostatic pressure, the only elasticity possessed by them is bulk modulus. Fluids में सिर्फ bulk modulus होता है। मसलन जो मरकरी या वाटर होता है ना, ये बात याद रखनी है, मरकरी एंड वाटर हैव ओनली बल्क मॉडुलस। इनका यंग मॉडुलस और shear मॉडुलस जो होता है वो 0 होता है, they have only bulk modulus. So third one is shear modulus, or it is also called modulus of rigidity, modulus of rigidity और shear modulus एक ही चीज है। When under the effect of deforming force, a body undergoes a change in shape, keeping its volume unchanged, we say it is shear modulus or modulus of rigidity. The change in shape takes place by the movement of layers of the
body one above the other. या हम इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ shear stress to shear strain is called modulus of rigidity or shear modulus. इसके लिए consider a rectangular solid cube with its lower face ADCC fixed. When a tangential force is applied parallel to the upper face AB, small b and small d, the couple so produced makes the upper layers so move relative to the lower fixed face ADCC, and the face ABCD is then said to be sheared through an angle theta and radians called shear strain. देखें कैसे, ये हमारे पास एक डब्बा था एक क्यूब का शक्ल का, ये इसकी लोअर सरफेस की बात करें कि ये ADCC है ये वाली, और ये जो साइड है ये फिक्स है, और ये इसकी अपर साइड है ये वाली, इसके ऊपर हमने ये फोर्स लगाई है ऐसे, टेंजेंशियल फोर्स लगाई है, ये टेंजेंशियल स्ट्रेस है ऐसे। अब ये जो इसकी अपर लेयर होंगी ना, ये आगे की तरफ यू मूव कर गई है, ये वाली, ये जो डॉटेड लाइन वाली है ना, ये अपर से ये चेंज हो गई है, इसका इतनी चेंज आई है, ये डेल्टा एल ओरिजिनल लेंथ, ये डेल्टा एल, इसको हम डेल्टा ए बाई ए, इसको डेल्टा ए भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं, डेल्टा ए और इसको हम ए कह लें इस साइड। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ये वाली साइड। तो जब आप टेन थीटा लेंगे ना तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है डेल्टा ए ओवर ए, और टेन थीटा जो है वो डेल्टा ए ओवर ए मीन ये शेयर स्ट्रेन होगी, फिर शेयर स्ट्रेन इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस ऑफ द फोर्स पर यूनिट एरिया ओवर डेल्टा ए ओवर ए शेयर स्ट्रेन, ये बनेगा हमारा शेयर मॉडुलस। सो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमने जिसका कहा ये उसी तरह होगा। अब शेयर स्ट्रेन इज इन द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाय shear strain is equal to angle of shear tan theta is equal to delta L by A, क्योंकि हमने यहाँ पे इस केस में चेंज इन शेप को डेल्टा एल से डिनोट किया है, सो डेल्टा एल ओवर एल लिखेंगे, ये इसको डेल्टा ए ओवर ए भी कह सकते हैं। और जब एंगल स्मॉल होगा तो tan थीटा जो थीटा के इक्वल आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल आ जाएगा, where L is equal to AD, length of the side of the cube, original length, और delta L जो है displacement produce हुआ है perpendicular to AD. The modulus of rigidity or coefficient of elasticity of the material of the cube is given by modulus of rigidity is tangential stress to shear strain, ठीक है, F over A over theta, F over A over delta L over A, या इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा, तो ईटा इज इक्वल टू एफ ओवर ए थीटा या एफ एल ओवर ए डेल्टा एल, ये हमारे पास आ जाएगा फार्मूला फॉर द शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगेन याद रखिएगा इसका जो ऐसा यूनिट है वो भी 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल ही होगा, और इसका डायमेंशन यूनिट भी वही होगा। This relation is similar in form to one derived for the Young modulus, with the only difference that F in this relation is the tangential stress, not linear one, and delta L is the displacement perpendicular to L instead of length L. The only type of, ये नोट करना है आपने, the only type of elasticity possessed by fluids, फ्लूइड जो हमने पढ़ा था पहले, फ्लूइड के अंदर कौन सी इलास्टिसिटी होती है, सिर्फ बल्क मॉडुलस होता है इनको, या वॉल्यूम इलास्टिसिटी होती है। सॉलिड जो होते हैं स्पेशली रिजिड में पोजेस द 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, सॉलिड के अंदर तीनों टाइप की इलास्टिसिटी हो सकती है, जबकि जो लिक्विड्स हैं या गैसेज हैं उनके अंदर सिर्फ बल्क मॉडुलस होगा। Work done by the rigid bodies under deformation is given by work done is equal to 1/2 deforming force into deformation produced.
ठीक, डिफॉर्मिंग फोर्स इनटू डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस। अगर हम दोनों तरफ से यहाँ इधर हम ए और एल पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, ए एल डिवाइड बाई ए एल, तो ये जो एरिया टू लेंथ, तो ये मतलब ये वॉल्यूम होता है। ये जो ए एल होगा ना, ये ऊपर वाला, ये इधर जब आके इस तरफ आ जाएगा, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएगा, ये हमारे का वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएगा। जबकि ये जो ए होगा, ये वाला ए, ये इसका बटा कर दें यहाँ पे, और ये जो एल है इसका बटा कर दें। देखिए ये क्या बना, ये बन गई डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये बन गई स्ट्रेस, ये होगी स्ट्रेस, और ये बन गई डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस मीन डेल्टा एल ओवर एल, ये बन गई हमारे पास, ये जो इतनी चीज़ है ये बन गई स्ट्रेन। तो 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, दिस इज वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, और इसे कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये बात याद रखनी है। This relation holds for 3 types of strain. It's okay from here. Allah Hafiz.